Hello, good afternoon, students, once again. Okay, so yesterday we have completed about the egg, means in previous lecture we have completed about the egg structure and egg composition and regarding the quality of eggs, internal quality as well as external qualities. Okay, today we will discuss about the preservation of egg, how we will preserve the egg. Will preserve the egg in two formats. First one is intact egg and the second one is liquid egg. Intact egg means we can preserve egg as such whole, and liquid egg means we can preserve the internal matter of egg, means albumin and yolk whole. So this preservation of egg depends on the low temperature, chemical agents, and dehydration. There are three main base principles: depends on the temperature, depends on the chemical changes, and depends on the dehydration. Okay, so first we will discuss about the for whole egg or intact egg, how we will preserve our whole egg. So there are the different steps. Like first steps, as you show in the book, it is the disinfection of egg shell. First, we will disinfect the egg shell. Means those eggs which we want to going to preserve, we will we will disinfect the eggshell. Means there are contamination of eggshell या maybe soiled eggshell, कुछ भी हो सकता है, तो हम उसको सबसे पहले disinfect करेंगे. So what is the process of disinfection? The eggs are disinfected by dipping them in caustic soda solution. So which solution we will use? The caustic soda means NaOH. NaOH के solution को हम use करते हैं egg को disinfect करने के लिए. उसका प्रोसेस क्या है? फर्स्ट वी विल टेक अ क्लीन कंटेनर, एक हम कंटेनर लेंगे, वी विल फिश द क्लीन वाटर, उसमें हम वाटर फिल करेंगे. आफ्टर दैट वी विल ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH and make a 1% aqueous solution. Okay, then after that we will stir the solution with a clean wooden stick or glass rod. दोनों में से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं. And then after the mixing the solution, we can wash the rod after use. One thing we have to remember, in this case we should wear the rubber gloves, because this solution can harm our hands also. We will wear the rubber gloves, and then the place sound eggs. Sound eggs means, as you know, sound eggs means no cracked shell. The eggshell should not be cracked. Means इसमें hairline crack भी नहीं होना. Sound means properly good egg, quality egg. So then we can choose. We will choose sound eggs, and in this put in the caustic soda solution. What we will do? We will remove the dirt from the eggs. कुछ डर्ट तो है वो सॉल्यूशन में प्रिजर्व करके ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी. एंड इफ देयर इज सम सॉइल, सम एक्सक्रीटा, some litter is adhered to the egg, and we can brush gently by rubbing with hand. हमने hand में gloves पहने नहीं है, उसको gently clean कर egg से remove करेंगे. Okay, then do not leave eggs in the solution for more than 2 to 3 minutes. ये प्रोसेस हमारा कितनी देर में कंप्लीट हो जाना चाहिए? 2-3 मिनट्स में. हमने एग लिया, और डिपेंड करता है हमारा कंटेनर कितना है, हम एक बार में कितने एग क्लीन कर रहे हैं. सपोज हमने 1 डजन लिए या 2 डजन लिए, हमने उसमें डिप के, ये नहीं है कि हमने एक बार में 8 एग्स रख दिए, तो हम उसको नहीं कर पाएंगे 2 to 3 मिनट्स में क्लीन. उतनी देर वो कास्टिक सोडा में अगर रहेगा, एज यू नो शेल पे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं. अगर इतनी देर हम केमिकल में उसको डिप करके रखेंगे तो केमिकल अंदर उसको रिएक्ट करेगा कंटेंट्स में. देन हम उसको क्लीन करेंगे हैंड से. आफ्टर दैट एग्स को हम क्लीन वाटर में अगेन ट्रांसफर करेंगे और तुरंत उसमें से निकाल के उसको ड्राई एयर मींस उसको ओपन एयर में हम रख देंगे, जिससे कि ऊपर का मॉइस्चर तुरंत रिमूव हो जाए. हमारा कोई भी स्टेप होता है, कोई भी ट्रीटमेंट होता है, हमारा फर्स्ट टारगेट यही रहता है, हम जो भी ट्रीटमेंट करेंगे उसके बाद हम एग को तुरंत ड्राई करेंगे. क्योंकि आपको पता है कि पढ़ा दिया गया है कि there are many thousands of and clean the eggs in clean plain water and remove the chemical. वो हम remove करेंगे and dry the eggs immediately. And
व्हेन वी चेंज दिस सॉल्यूशन मींस हमने अगर सॉल्यूशन बनाया है हम उसमें कितनी बार उस सॉल्यूशन को अगेन यूज कर सकते हैं. तो चेंज द सॉल्यूशन एज सून एज इट गेट्स डर्टी. जैसे ही आपने लगे सॉल्यूशन डर्टी हो गया है देन यू कैन क्लीन इट, मतलब चेंज इट, सॉरी. एंड 5 to 6 dozen eggs can be cleaned in 5 liters of sodium hydroxide solution. सपोज सॉल्यूशन बना रहे हो उसमें आप 5 to 6 dozen eggs को क्लीन कर सकते हो. ओके, any question is here in this step? Just wait. At the time of egg laying, we had already disinfected the intact egg with formaldehyde MnO4. At the time of egg laying. Okay. Siddharth, this disinfection is generally when we store the eggs. Okay. मतलब स्टोर आप कर रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम इन द सेंस आपका कमर्शियल पोल्ट्री है, आपने उसको 1 वीक के लिए स्टोर किया है या 2 वीक के लिए किया, 3 वीक के लिए किया, ठीक है. दैट इज द ओनली स्टोरेज ऑफ एग. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ एग. मींस वापस बल्क में एग है, डिमांड नहीं है. सपोज आपने समर्स में एक्शन किया, समर्स में एग्स की डिमांड ऐसे ज्यादा नहीं होता एज कंपेयर टू विंटर्स. ओके, हमने प्रिजर्वेशन एंड डिसइंफेक्शन. डिसइंफेक्शन हम उस टाइम इसलिए करते हैं कि वहां पे सॉइल्ड एग हो सकते हैं, कुछ भी है, उसको जस्ट क्लीन करने के लिए हम उसको डिसइंफेक्ट करते हैं. हियर जो हम एग को प्रिजर्व कर रहे हैं ये आप लॉन्ग टाइम के लिए भी कर सकते हैं. तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप आता है कि एग शेल को डिसइंफेक्ट करना. दोनों मेथड यूज कर सकते हैं. सेकंड ट्रीटमेंट, सेकंड स्टेप स्टार्ट होती है. फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड आएगा आप शेल को, देन हीट इट. एंड हीट इट स्टैंड्स फॉर द थर्मोस्टेबिलाइजेशन. थर्मोस्टेबिलाइजेशन का मींस क्या हुआ? मींस अगर आप समझो कि जो एग का कंटेंट है, ठीक है, एल्बुमिन एंड योक, उसको स्टेबलाइज करना. मींस जिस क्वालिटी में वो उस वक्त प्रेजेंट है, गुड क्वालिटी में, वो वैसे ही प्रेजेंट रहे आफ्टर सम टाइम. ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है? पर्पस हम क्यों यूज करते हैं? टू किल द जर्म स्पॉट. फर्स्ट सपोज हमारे पास एग है, मान लो फर्टाइल एग आ गया है, आपके पास फर्टाइल एग्स हैं, हमारा सबसे पहले ये रहेगा कि हम उसके जर्म स्पॉट को किल करें जिससे कि उसमें कुछ भी डेवलपमेंट ना हो. देन स्टेबलाइज द क्वालिटी ऑफ एग वाइट. एग वाइट मींस एल्बुमिन. एल्बुमिन को हमने डिस्कस किया है कि अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करते हैं या फिर आपने इसको हम लोग घर पे भी चेक करते हैं कि अगर हमने एग क्रेट लिया है और लंबी टाइम तक हमने उसको रख दिया, एग वाइट जो है टाइम के साथ थिन होता जाता है. ठीक है, स्टेबलाइज द क्वालिटी ऑफ एग वाइट. एग वाइट की क्वालिटी को स्टेबलाइज करना चाहिए. देन प्रिवेंट थिनिंग ऑफ एल्बुमिन. वही बात आ गई, स्टेबलाइज करना मींस प्रिवेंट थिनिंग ऑफ एल्बुमिन ऑन स्टोरेज ऑफ. मींस थर्मोस्टेरिलाइजेशन का मेन पर्पस क्या हो गया कि एल्बुमिन की थिनिंग ना हो, वो एज सच रहे. इंक्रीज द एल्बुमिन इंडेक्स ऑफ एग विदाउट सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन योक इंडेक्स. मींस एल्बुमिन इंडेक्स जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ द योक इंडेक्स. एल्बुमिन एंड योक इंडेक्स वी कैन ऑल्सो. अब किस तरह से एल्बुमिन इंडेक्स इंक्रीज होती है? इट हैज बीन रिपोर्टेड, देखा गया है एक रिसर्च में कि हाइट ऑफ एल्बुमिन इन थर्मोस्टेबलाइज्ड एग. अगर हम एक तरफ थर्मोस्टेबलाइज्ड एग की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम नॉर्मल एग की बात कर रहे हैं जो आप स्टोर करते हो. ठीक है, जो अभी सिद्धार्थ बात कर रहे थे, अगर हमने नॉर्मली स्टोर करने की बात करी है, दूसरी तरफ हमारे पास थर्मोस्टेबलाइज्ड एग है, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है कि थर्मोस्टेबलाइज्ड एग्स को इफ वी विल हैव फॉर 3 मंथ्स एट 21 डिग्री सेंटीग्रेड, मींस 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे सोचो हमने उनको 3 मंथ्स के लिए रखा है. ओके, एंड दूसरी तरफ हमारे पास एग हैं जिनको हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे केवल 2 मंथ के लिए रखा. दोनों में क्या डिफरेंस आया कि एल्बुमिन इंडेक्स जो थर्मोस्टेबलाइज्ड एग की थी वो 6.5 mm थी, और दूसरी तरफ जो हमने एग रखे थे नॉर्मली रूम पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसकी 6.2 थी. मींस एल्बुमिन इंडेक्स कम हो गई. तो एल्बुमिन इंडेक्स ज्यादा इज अ गुड क्वालिटी इंडिकेटर. Whereas it treated egg, the height of albumin index reduced from this. Same ऐसे ही
हाइट अगर हम एल्यूमिनियम इंडेक्स की चेक करेंगे वो भी 5.2 से 2.1 में रिड्यूस हो गई। नेक्स्ट, now the procedure of thermostabilization. Just wait, it's uploading. Yeah. What is the process of thermostabilization? Just we read about the why we will thermostabilize the egg. Now process to prevent the spoilage of fertile eggs. ठीक है, इसमें हम fertile eggs को भी even store कर सकते हैं. तो to prevent spoilage of fertile egg during summer months, the eggs in wire baskets are dipped in water. First, we will put the eggs in a water basket, wire basket, and dipped in water at 54.5 degrees centigrade for 30 minutes. देखो, थर्मोस्टेरिलाइजेशन टर्म था, हीट ट्रीटमेंट था, तो हमें एग को क्या देना है, एक हीट ट्रीटमेंट देना है। हम एग को वायर बास्केट में रखेंगे एंड हमारे पास वाटर है जो कि 54.5 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है, तो हम उस वायर बास्केट को उस हॉट वाटर में 30 मिनट के लिए रख देंगे। ठीक है, देन अगेन हम उसको रिमूव करेंगे, मींस वायर बास्केट को वहां से उठाएंगे एंड अगेन उसको ड्राई कर लेंगे फैन में या नॉर्मली ड्राई एयर में उसको सुखा देंगे। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ थर्मोस्टेबलाइजेशन, मींस 30 मिनट में जो आप एग का अंदर का मैटर है वो स्टेबलाइज हो जाता है। तो दिस इज द सेकंड स्टेप। फर्स्ट हमने डिसइंफेक्ट किया एग शेल को एंड सेकंड वन इज द हीट ट्रीटमेंट। ओके, देन थर्ड स्टेप आता है सीलिंग द पोर्स ऑफ द शेल। हमने ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम उनको एग पोर से क्या होता है कि टाइम के साथ मॉइस्चर इवेपोरेट होता रहता है, एयर सैक का साइज बढ़ता रहता है, तो मॉइस्चर इवेपोरेट रहेगा तो अंदर की जो क्वालिटी है वो डिटेरियोरेट होती है। तो हमारा थर्ड स्टेप आता है कि हम उन पोर्स को ही सील कर दें। सील कर देंगे तो क्या होगा, अंदर का जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल भी इवेपोरेट नहीं होगा। अब सीलिंग की क्या क्या मेथड्स है, देयर आर डिफरेंट मेथड्स। तो टोटल 5 मेथड्स हियर आर मेंशन्ड: लाइम वाटर ट्रीटमेंट, डिप इन ऑयल, फ्लैश हीट ट्रीटमेंट, cold storage, and water glass treatment. So we will discuss one by one. First is lime water treatment. Lime water means चूने का पानी, as you know. Okay. तो इसका मेथड क्या है? Add 1 kg of good quality quicklime. Means हम कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे 1 kg and it will be mixed in a 20 liters of clean water. ठीक है, 1 kg आपने quicklime लिया और उसको आपने 20 लीटर्स क्लीन वाटर में एक कंटेनर में मिक्स किया। देन स्टिर विल, भैया कि आप एक स्टिक से या रॉड से उसको स्टिर करेंगे। देन अलाउ द एक्सेस ऑफ टाइम टू सेटल डाउन। हम वेट करेंगे, जब हमने कोई भी चीज हम मिक्स करते हैं तो जो भी उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं वो सेटल डाउन हो जाती है। ठीक है, आपने सॉल्यूशन बनाया, देन वी विल वेट फॉर सम टाइम कि उसकी जो इम्प्योरिटीज है वो सेटल डाउन हो जाए, या एक्सेस है कोई चीज वो भी सेटल डाउन हो जाएगा। देन जो ऊपर का सुपरनेटेंट लिक्विड होता है उसको हम पोर कर लेंगे। ठीक है, दूसरे किसी भी कंटेनर में। Keep the eggs dipped in the lime water for preserving their quality. हम लाइम वाटर में क्यों कर रख रहे हैं, हम अभी तक ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, हम केवल क्वालिटी ऑफ एग्स। ठीक है, तो उसको हम प्रिजर्व करने के लिए लाइम वाटर में डिप देंगे। कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं इस मेथड की। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द मेरिट्स। बीइंग अल्कलाइन सॉल्यूशन, NaOH क्या है, अल्कलाइन है। ठीक है, बीइंग अल्कलाइन सॉल्यूशन इट हैज अ सैनिटाइजिंग इफेक्ट। पहली बात, जैसे लाइम का है ना, अभी हम लोग सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, तो ये एक सैनिटाइजिंग इफेक्ट देता है। इट इज रिलेटिवली अ चीपर मेथड, सस्ता है, नॉर्मली चूना कहीं भी मिल जाएगा। एंड लाइम इज इजीली अवेलेबल, तो इट्स अ चीपर मेथड, बहुत कॉस्टली नहीं है। एंड मेक शेल मेम्ब्रेन लेस परमिएबल बाय केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल रिएक्शन होता है उससे जो शेल मेम्ब्रेन है एग की वो लेस परमिएबल हो जाती है। लेस परमिएबल मींस उससे जो मॉइस्चर है वो इवेपोरेट नहीं होगा। तो दिस इज द मेरिट्स। एंड डीमेरिट्स क्या है, एग्स रिमेन डिप्ड देयरफॉर डेवलप द लाइम स्मेल एंड टेस्ट। अब जब हम एग को लाइम वाटर में डिप कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, उससे एक लाइम की स्मेल आ जाती है, क्योंकि पोर्स तो है ही देखो। ठीक है ना, अब पोर है तो कहीं ना कहीं दोनों में अंदर का लिक्विड और जो बाहर के लिक्विड में उसमें मतलब चेंजेस आ सकते हैं। तो एग को लाइम वाटर में डिप करने से क्या होगा, स्मेल एंड टेस्ट में चेंजेस आ सकते हैं।
अगर हम इस सॉल्यूशन में कॉमन सॉल्ट ऐड करें तब क्या होता है कि इट ब्रेक द फिल्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड इट वीक द सॉल्यूशन। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से फॉर्म होता है? सपोज जब हमने एक कंटेनर में सॉल्यूशन बनाया और उसको हमने ओपन ही रखा है, क्योंकि ये तो है नहीं कि हमने कोई कवर करके रखा है, ठीक है ना। आपने उसमें लाइम वाटर में डिप कर दिए। जब आप उसको ओपन रखते हो तो जो कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है, एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे वो रिएक्शन होता है। और उस रिएक्शन में क्या होगा? उस रिएक्शन में जो सॉरी ये तो कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन है, एयर से जब वो रिएक्ट एयर की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर उस वाटर पे फॉर्म हो जाती है, ठीक है। उस वाटर पे जब लेयर फॉर्म हो जाएगी, जब हम उसको ब्रेक करेंगे सपोज सॉल्ट डाल के, तो जो अंदर का सॉल्यूशन है वो वीकेन हो जाता है। वीकेन मीन उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो वीक हो जाती है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। थर्ड स्टेप, थर्ड टाइप, अब हम ये तो पहला हो गया कि लाइम वाटर में हमने उसको डिप किया एंड उसके पोर्स को सील कर दिया। सेकेंड है डिपिंग इन ऑयल। ऑयल में डिप करके भी हम एग के पोर्स को सील कर सकते हैं। कौन से हम इसमें ऑयल यूज कर सकते हैं? मिनरल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, linseed oil, groundnut oil, and many other oils. Okay, so we can use mean अगर आप दो टर्म्स में समझो, mineral oils and vegetable oils for sealing the pore. Then करते क्या हम मिनरल ऑयल यूज क्यों करते हैं? मेनली शुड बी कलरलेस, नहीं सॉरी, हाँ इट शुड बी कलरलेस, अडरलेस, टेस्टलेस एंड पैराफिन बेस, ठीक है। एंड इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है मिनरल ऑयल्स की, दैट इज 0.8252 टू 0.845 एंड इट्स द फ्रेश पॉइंट, इट्स 121 डिग्री सेंटीग्रेड टू 177 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिपिंग इन ऑयल? अब इसका प्रोसेस क्या है, हम कैसे उसको ऑयल में डिप करके और को सील करेंगे? First, we will take a clean, fresh egg with sound cell. In every process, we have to take the sound eggs. Sound eggs means क्वालिटी एग्स, कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं। अगर उसमें थोड़ा सा भी क्रैक है तो आप उसको लॉन्ग टाइम में प्रिजर्व नहीं कर सकते। देन मेक द एग्स ड्राई। सबसे पहले कभी जब भी हम एग्स लेंगे हमें उनको ड्राई होनी चाहिए वो, तो मॉइस्चर फ्री, बाय एक्सपोजिंग देम टू एयर और इन फ्रंट ऑफ फैन। आप एयर में रख के उनको ड्राई कर सकते हैं या फिर फैन में रख के ड्राई कर सकते हैं। देन अगेन कीप द ड्राई एग्स इन अ वायर बास्केट। एक बास्केट लेंगे, हम उसमें एग को रख देंगे। स्ट्रेन द ऑयल एंड हीट इट टू द 140 डिग्री फॉरेनहाइट, मीन 60 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने जो मिनरल ऑयल लिया है उसको स्ट्रेन करके उसको हीट करेंगे हम 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक। देन जब ऑयल आपका 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट हो जाएगा, देन डिप द फायर बास्केट कंटेनिंग एग्स इन हीटेड ऑयल फॉर 20 सेकंड, ओनली 20 सेकंड्स, ठीक है। हमने उस फायर बास्केट को उस मिनरल ऑयल, जो हीटेड मिनरल ऑयल है, उसमें डिप करना है केवल 20 seconds के लिए। And take out the wire basket of eggs from oil and allow to drain oil of excess of oil and store the eggs. 20 सेकंड के बाद हम क्या करेंगे, उस वायर बास्केट को वहां से रिमूव करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें दो चीजें हमें ध्यान रखनी है कि नेवर यूज एग्स विद मॉइस्चर, ठीक है। आपको भी पता है ना कि हम पानी में तेल नहीं मिक्स कर सकती, तो अगर हमने मॉइस्ट एग ले लिए, मीन्स एग के ऊपर कुछ भी मॉइस्चर है, तो उस पे ऑयल की कोटिंग प्रॉपरली नहीं होगी। तो एग शुड बी ऑलवेज ड्राई, ओके। थर्ड ट्रीटमेंट आता है फ्लैश हीट ट्रीटमेंट। ये सारे नेक्स्ट शेल मेम्ब्रेन मीन्स अभी तक हमने क्या किया था,
तक हमने क्या किया था कि से कोटिंग करके साइड फ्रॉम द एग, जो शेल मेम्ब्रेन होती है, दो तरह की शेल मेम्ब्रेन होती है, आउटर शेल मेम्ब्रेन एंड इनर शेल मेम्ब्रेन। तो इनर शेल मेम्ब्रेन मींस एल्ब्यूमिन की जो जस्ट ऊपर की लेयर है उसको सील करना, उनके पोर्स को सील करना, ठीक है। देन इसका मेथड क्या है, फर्स्ट वी विल टुक द एग, सिलेक्शन ऑफ एग लेंगे हम, इसमें से पहले हम कैंडलिंग कर लेंगे, ठीक है। हेलो, 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 यस, ओके सर। फर्स्ट वी विल टुक द एग, देन कैंडलिंग शुड बी डन, ठीक है। फर्स्ट हम कैंडलिंग करेंगे एंड सेलेक्ट ओनली सच एग्स दैट हैव स्मॉल एयर सेल, ओके। एयर सेल का आप पढ़ चुके हैं, किसी में स्मॉल होता है, किसी में बिग होता है। बिग मीन्स अगर उसका कंटेंट थोड़ा सा ड्राई हो गया, जैसे जैसे टाइम पास होता है एग ओवुलेशन के बाद, ओविपोजिशन के बाद का, देन एयर सेल का साइज बढ़ता जाता है, ठीक है। तो फिर आप कैंडलिंग करेंगे हम, सब फर्स्ट पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे कि किन एग्स में एयर सेल स्मॉल है ना। इफ एग्स हैव लार्जर एयर सेल, द लार्जर एरिया ऑफ एल्बुमिन इन कांटेक्ट ऑफ एयर सेल विल रिमेन अनअफेक्टेड, क्योंकि देखो जो एरिया आपका, अभी हमने क्या कहा इस मेथड में, जो इनर शेल मेम्ब्रेन है वो एक तरह से उसके वो सील करते हैं हम, इनर वाली, ठीक है। अभी तक हम आउटर कर रहे थे, इसमें हम इनर शेल मेम्ब्रेन सील करते हैं। लेकिन अगर एयर सैक का साइज बड़ा होगा, तो आप अगर एग को इमेजिन करो तो क्या होगा कि जो एयर सैक के कांटेक्ट में एल्बुमिन आ रहा है वो एरिया क्या होगा, अनअफेक्टेड रह जाएगा, वहां पे इस ट्रीटमेंट का कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। प्रोसेस क्या है कि पुट द एग्स इन, अगेन हम एक वायर बास्केट में एग्स लेंगे, डिप द बास्केट विद एग्स इन बॉइलिंग वाटर फॉर 5 सेकेंड ओनली, हमने केवल बॉइलिंग वाटर में उसको 5 सेकेंड के लिए डिप करना है, एंड अगेन एग को ले लेना है, देन ड्राई कर देना है इन अ फैन और whatever is the place, means dry air or in a fan. The merits क्या है इस मेथड की, the foaming quality of albumin remain unaffected. Foaming quality means एज यू नो कि जब एग बनाते हैं तो हम एग को जब हम बीट करते हैं तो फोम बनता है, ठीक है। अगर हमने हीट ट्रीटमेंट किया है तो हमारी जो फोमिंग क्वालिटी है वो हमेशा एज सच रहेगी। एक्सेप्ट अ थिन फिल्म ऑफ एल्बुमिन फॉर्म्ड बाय कोएगुलेशन, नो एप्रिशिएबल चेंज इन एग कंटेंट टेक्स प्लेस, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि एल्बुमिन की जो आउटर कवरिंग थी वो थोड़ी सी कोएगुलेट हो जाती है, कोएगुलेट हो जाएगी तो मॉइस्चर इवेपोरेट नहीं होगा, पोर्स सील हो जाएंगे, उसके अलावा एग कंटेंट में कोई चेंजेस नहीं होते। देन बॉइलिंग वाटर हेल्प्स क्लीनिंग, सैनिटाइजिंग एंड जर्मिसाइडल एक्शन ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी तक आपने जितने मेथड्स हमने पढ़े, हम ज्यादा सब में बॉइलिंग वाटर में एक बार डिप करते हैं, तो उससे क्या होता है ऑटोमेटिकली वो थोड़े से क्लीन भी हो जाते हैं, सैनिटाइज भी हो जाते हैं। Since boiling of water is a requirement in it, though no thermometer or thermostat device is needed. ठीक है, इसमें हमने boiling water की requirement थी, तो हमें किसी thermometer, thermostat की requirement नहीं है. Relatively, it is a cheaper method as no chemical or no oil. ये तो मतलब सबसे cheap method है पोर को क्लीन करना। आपने सिंपल पानी गर्म किया, उसमें एग्स को डिप किया, देन उनको ड्राई किया और रख दिया, ठीक है, कुछ नहीं, कोई मीन्स इसमें एक्सपेंसेस नहीं है। देन आता है कोल्ड स्टोरेज ऑफ एग। एग को हम कोल्ड स्टोर में रख के भी पोर्स को सील कर सकते हैं, कैसे? द थर्मोस्टेबिलाईजेशन ऑफ एग गिव्स अ टेम्परेरी प्रोटेक्शन टू एग कंटेंट फ्रॉम बैड इफेक्ट ऑफ समर टेम्परेचर। जो अभी हमने पढ़ा था कि थर्मोस्टेबिलाईजेशन है वो एक लॉन्ग टर्म का इफेक्ट नहीं देता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस टू अ लिटिल एक्सटेंट द फोमिंग क्वालिटी ऑफ एल्बुमिन। ये क्या है, जो फोमिंग क्वालिटी है उसको थोड़े से एक्सटेंड के लिए रिड्यूस करता है, मींस कुछ टाइम तक वो स्टेबलाइज रहती है, आफ्टर दैट वो रिड्यूस हो जाती है। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू स्टोर एग्स फॉर लॉन्गर पीरियड इन कोल्ड स्टोरेज। तो फाइनली क्या होता है, जैसे हम वेजिटेबल्स या
हर चीज को स्टोर करते हैं कोल्ड स्टोरेज में। तो जो मेन मेथड है वो, आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना है तो कोल्ड स्टोरेज में यू विल स्टोर दैट। अदर मेथड ऑफ स्टेबलाइजेशन alone is not useful for storing eggs over a longer period. जो अदर मेथड्स हैं उनमें हम लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर नहीं कर सकते एक्सेप्ट कोल्ड स्टोरेज। इसमें आपको टेम्परेचर कितना चाहिए, -1 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए हमारे पास कोल्ड स्टोर का। एंड रेंज कितनी है, 0 to 1.5। रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड बी 80 to 90%। क्योंकि 80 मतलब मॉइस्चर ज्यादा रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एग का कंटेंट है, मींस एग में से मॉइस्चर इवेपोरेट नहीं होगा। प्रिकॉशंस हमें इसमें क्या लेनी चाहिए इस मेथड में, द प्रॉपर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल। हमारा कोल्ड स्टोरेज का मेन प्रिंसिपल यही है कि टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल उसमें प्रॉपर होना चाहिए। टेम्परेचर इज रिड्यूस टू -2 डिग्री सेंटीग्रेड, द एग कंटेंट विल फ्रीज एंड शेल विल बर्स्ट। अभी हमने कहा ना 0 to 1.5 होना चाहिए, सॉरी -1 नहीं था, दैट इज 0 to 1.5। और अगर क्या होगा, -2 की तरफ चला गया, मीन 0 से नीचे जाएगा, देन अंदर का जो कंटेंट है वो क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा और शेल उसकी बर्स्ट हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। एग्स आर स्टोर्ड फॉर लेस देन अ मंथ, अगर हम 1 महीने से कम के लिए स्टोर कर रहे हैं, देन टेम्परेचर में रेंज बिटवीन 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, एंड सैनिटाइज द कोल्ड स्टोरेज बिफोर स्टोरिंग द एग्स। कोई भी हम वर्क करने जाते हैं, लैब से रिलेटेड कुछ भी हम करते हैं, तो हमें एवरीथिंग वी शुड सैनिटाइज। एंड द डोंट कीप एग्स इन सॉडस्ट, rice husk or straw in cold storage to avoid fungal and bacterial contamination। जब हम कोल्ड स्टोर में स्टोर करेंगे तो हम उनको नॉर्मली जो हमारी सॉडस्ट होती है या वुड शेविंग्स है या राइस हस्क है, हम इन चीजों को नहीं यूज कर सकते। इनसे क्या है, क्योंकि मॉइस्चर तो है ही, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो इसमें फंगल ग्रोथ होने के चांसेस रहते हैं, कंटामिनेशन हो सकता है। Disinfect the cold storage room of egg by spraying 2 to 5% and sodium pentachlorophenate। ठीक है, जो रूम है आप उसको डिसइंफेक्ट करेंगे थ्रू 2 to 5% ऑफ सोडियम पेंटाक्लोरोफिनेट सॉल्यूशन से। The last method of sealing the pores, that is the water glass treatment. Water glass is sodium silicate. What is the principle behind that? When eggs are dipped in the solution of sodium silicate, a coating of silica over the shell of egg is formed to seal the pores। ठीक है, सोडियम सिलिकेट के सॉल्यूशन से क्या होगा, जब हम उसमें उसको डिप करेंगे तो सिलिका की एक कोटिंग फॉर्म हो जाएगी एग के ऊपर एंड पोर्स सील हो जाएंगे। सोडियम सिलिकेट डज नॉट इम्पार्ट एनी स्मेल और टेस्ट, इससे कोई भी ना टेस्ट में डिफरेंस आता है ना कोई स्मेल आती है, बिकॉज इट इज एन inactive substance which does not penetrate through shell. It is a inactive substance, just ये कोटिंग हो रही है, ये अंदर के कंटेंट से कुछ भी इंटैक्ट नहीं करती। ठीक है, तो these are the different methods of sealing the pores। अब इसका पूरा एक मेथड है कैसे हम सोडियम सिलिकेट ट्रीटमेंट करते हैं। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रीवियस मेथड्स? Anyone have any question? Just tell me yes or no. Clear. Okay, good, Molly. Means everything is clear till now. Okay. Now the water glass treatment का method हम discuss करते हैं कि कैसे हम इसको treatment करेंगे। First, add the commercial water glass in boiled water at the rate of 1 kg in 100 liter। Means आप सोडियम सिलिकेट 1 kg सोडियम सिलिकेट को we will mix in the 100 liter of water। Then again stir well with a stick or rod and strain and keep it cool। ठीक है, उसको हम मिक्स करेंगे, then strain करके उसको रख देंगे कूल होने के लिए। This is the method. Now these are total methods, whole the methods of the preservation of whole egg or intact egg। Means whole egg को हम इस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। नाउ सेकंड वन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ लिक्विड एग। अब हम लिक्विड एग को कैसे प्रिजर्व करेंगे, लिक्विड मींस ब्रेक करके करेंगे। ठीक है, नाउ लिसन केयरफुली,
फर्स्ट वी विल कलेक्ट द फ्रेश एग, हमने फ्रेश एग्स कलेक्शन कर लिया उनका, एंड कीपिंग एग्स इन कोल्ड स्टोरेज एट 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 5 hours। जैसे ही हम एग कलेक्शन करते हैं, एग कलेक्शन शुड बी डन एटलीस्ट 3 times a day। ओके, एग आपने कलेक्ट किया, हमें पता है कि हमने इन्हें सेल आउट नहीं करना, हमें इन्हें प्रिजर्व करना है, ठीक है। तो आप उन्हें 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोल्ड स्टोरेज में 5 hours के लिए रख दोगे। चिलिंग विल मेक, और उससे बेनिफिट क्या है, चिलिंग विल मेक द कैंडलिंग मोर इफेक्टिव एंड सेपरेशन ऑफ द योक एंड एल्बुमिन इजियर। चिलिंग से क्या होता है, कोई अगर आपने इसको देखा भी होगा कि एग को हम फ्रिज में रखते हैं, देन फ्रिज से हम जब निकालते हैं और आप उसको ब्रेक करते हो, तो एल्बुमिन और योक मींस एक दूसरे में जल्दी से मिक्स नहीं होते। अदरवाइज अगर हमने रूम टेम्परेचर पे रखा है तो योक एकदम से वो ब्रेक होके एल्बुमिन में मिक्स हो जाते हैं। तो चिलिंग से क्या होगा, दोनों थोड़े से स्टेबल हो जाएंगे, जिससे कि जब हम उनको ब्रेक करके अलग करेंगे तो योक और एल्बुमिन को हम अलग कर सकते हैं। Then selection of eggs by candling and inspection in the room maintained at 15 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने उसके बाद क्या करना है कि कैंडलिंग करेंगे, देन रूम को डिसइंफेक्ट करके keep the egg here at 15 डिग्री सेंटीग्रेड for 4 to 6 hours। हमने जो कोल्ड स्टोरेज में एग्स रखे थे 5 hours के लिए, वहां से उनको निकालेंगे, देन हम कैंडलिंग करेंगे। कैंडलिंग में एज यू नो कि कोई भी अगर क्रैक है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई ब्लड स्पॉट है, मीट स्पॉट है, एनी एबनॉर्मेलिटी है, हम उन्हें को अलग कर देंगे। बाकी एग्स को हम 4 to 6 hours के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे उस रूम नेक्स्ट रख देंगे। Then cleaning of eggs by dipping them in 2% sodium hydroxide solution in water at a temperature of 40 डिग्री सेंटीग्रेड for 3 minutes। क्लीनिंग कैसे करेंगे, इसमें हमने पहले भी की थी क्लीनिंग होल एग में, 1% का सॉल्यूशन बनाया था, फिर हम 2% के सॉल्यूशन को यूज कर रहे हैं, एंड 3 मिनट्स के लिए हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे उनको रख देंगे, और जैसे हमने पहले क्लीन किया था सेम ऐसे यहाँ पे क्लीन करेंगे। Then breaking the egg and examine at temperature below 18 डिग्री सेंटीग्रेड। आफ्टर क्लीनिंग हम एग को ब्रेक करेंगे। एग्जामिन द कंटेंट ऑफ ईच एग फॉर देयर क्वालिटी। जब हम एग को ब्रेक करेंगे तो हर एग के कंटेंट को हम क्वालिटी वाइज चेक भी करेंगे। ऑब्जर्व टू सी दैट देयर इज नो मीट स्पॉट, देयर शुड बी नो मीट स्पॉट, ब्लड स्पॉट एंड एनी अदर फॉरेन मटेरियल। हमने पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं एग में, तो हम ये सब चीजें एग में चेक करेंगे। देन कलेक्ट द एग कंटेंट इन स्टेरिलाइज्ड वेसल्स। जब हमने एग को ब्रेक कर दिया, उसको हम एक स्टेरिलाइज्ड वेसल कंटेनर को, वो कंटेनर पहले से स्टेरिलाइज होना चाहिए, हम उसमें उसे कलेक्ट करेंगे। फोर्स द एल्बुमिन थ्रू अ फाइन मैश टू ब्रेक इट्स स्ट्रक्चर एंड मेक इट होमोजेनियस एंड रिमूव चेलोजा एंड शेल पार्टिकल्स इफ एनी। मींस एल्बुमिन है उसको हम, जिसमें हम मतलब एल्बुमिन एंड योक दोनों को हम अलग अलग सेपरेटली कलेक्ट करेंगे। तो एल्बुमिन को हम क्या करते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, आप लोगों ने एल्बुमिन को जब तक हम फॉर्मिंग क्वालिटी ब्रेक नहीं करते वो ऐसे इकट्ठा रहता है। यहाँ पर हमें उसे क्या करना है, उसको मैश करना है और उसके स्ट्रक्चर को ब्रेक करना है, उसको होमोजेनियस फॉर्म में लाना है। एंड अगर चेलोजा है, चेलोजा यू नो ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वाइट, अगर उसमें वो प्रेजेंट है हम उसको रिमूव कर देंगे। और एनी कई बार होता है कि जब हम एग को ब्रेक करते हैं तो शेल पार्टिकल्स आ जाते हैं, हम उसको भी रिमूव करेंगे। देन चर्न द योक, और जब हमने योक लिया है योक हम चर्न करेंगे एंड स्टेन इट थ्रू अ सीव टू रिमूव वाइटलिन मेम्ब्रेन। और ये तो हमने एल्बुमिन में किया, योक में हम क्या करते हैं, योक को चर्न करेंगे, चर्न करना मींस वही मिक्सिंग करना, और उसमें उसको देन हम स्टेन करेंगे सीव के थ्रू, और वाइटलिन मेम्ब्रेन इफ देयर देन उसको हम रिमूव कर देंगे, योक की जो कवरिंग होती है। Now churn the albumin and yolk mix together to prepare a homogeneous mix। अब हमने दोनों को पहले सेपरेट करके कर लिया, then we mix both of them to by homogenizing for 5 minutes। हमने उनको मिक्स किया और 5 मिनट के लिए उसको चर्निंग की, अगेन होमोनाइज मैटर बनाने के लिए। देन अब जो हमारे पास मटेरियल रेडी हो गया, इसका हम करेंगे पास्चराइजेशन, ठीक है। पास्चराइजेशन मींस द होमोजेनियस एग मास इज पास्चराइज्ड एट, पास्चराइजेशन आई थिंक आपने पढ़ा है नहीं,
दो तरह से होता है, एक में लॉन्ग टाइम एंड दूसरा होता है शॉर्ट टाइम। लॉन्ग टाइम लो टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम हाई टेम्परेचर, मीन्स जिसमें हम कम टाइम के लिए रखते हैं उसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है, और जिसमें हम लॉन्ग टाइम के लिए पाश्चराइज करते हैं उसका टेम्परेचर कम होता है, LT LH एंड दूसरा UT। ठीक है, तो हम पाश्चराइज करेंगे किस किस टेम्परेचर पे, 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 3.5 मिनट्स। ठीक है, 3.5 मिनट्स के लिए 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे पाश्चराइज करेंगे इन प्लेट हीट एक्सचेंजर टू डिस्ट्रॉय साल्मोनेला एंड अदर डिजीज ऑर्गेनिज्म। मींस अगर उसमें कोई भी डिजीज ऑर्गेनिज्म है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम होमोजेनाइज मिक्सचर को पाश्चराइज करेंगे। देन desugaring. Desugaring means this is done by 0.5% yeast fermentation of egg mass at 30 degree centigrade for 1.5 hours। ठीक है, हम एग मास को 30 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 0.5% ईस्ट का फर्मेंट लेंगे और उसको हम मिक्स करेंगे एग उसमें एग कंटेंट में, एंड हम इसको 1.5 आवर्स के लिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए रख देंगे। देन अगेन फिर रीपाश्चराइजेशन करेंगे। इट इज डन बाय हीटिंग डीशुगर्ड। डीशुगर्ड मींस फर्मेंटेड, क्योंकि हमने उसमें ईस्ट मिला दिया, ठीक है ना, तो वो फर्मेंट हो गया। तो हमने डीशुगर्ड जो हमारे पास में एग मास है उसको हम अगेन पाश्चराइज करेंगे सेम मेथड पे जैसे हमने पहले किया था, 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 3.5 मिनट्स। देन लास्ट है चिलिंग ऑफ एग। पाश्चराइजेशन मतलब दो बार पाश्चराइजेशन, फर्स्ट पाश्चराइजेशन देन डीशुगरिंग देन अगेन पाश्चराइजेशन। ओके, देन वी विल चिल द होल एग कंटेंट, जो हमारे पास लिक्विड आ गया। देन चिलिंग ऑफ एग लिक्विड शुड बी डन इमीडिएटली टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्टोर्ड। ठीक है, जो लिक्विड है उसको हम तुरंत चिल करेंगे 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, देन उसको हम स्टोर कर देंगे। स्टोर करने के भी दो मेथड्स होते हैं। सॉरी, जस्ट वेट, जस्ट वेट, आई एम शोइंग। ओके, तो चिलिंग के दो मेथड्स होते हैं। देयर इज वन मेथड डिहाइड्रेशन, सेकंड वन इज फ्रीजिंग। ओके, hydration and freezing. And till now, if you want to ask any question, then you can. Any question is there? All clear hai? Anyone? Okay. Today we have discussed about the preservation of egg, whole egg and liquid egg. होल एग को हम किस तरह से प्रिजर्व करते हैं, लिक्विड एग को कैसे प्रिजर्व करते हैं। अभी हमने लिक्विड एग का पूरा मेथड पढ़ लिया है कि कैसे हम उसको ब्रेक करके सारे स्टेप बाय स्टेप उसको स्टोर करेंगे। दो तरह से फ्रीज करते हैं, डिहाइड्रेशन एंड फ्रीजिंग। कैसे मीन्स हम स्टोर कर दें, तो कोई डिहाइड्रेशन का मतलब समझ में आता है आपको, क्या करेंगे हम। डिहाइड्रेशन मीन्स उसके वाटर को रिमूव करके एज ए पाउडर फॉर्म में प्रिजर्व करना, दैट इज डिहाइड्रेशन। और एज सच लिक्विड को फ्रीज कर देंगे, वो फ्रीजिंग मेथड हो जाएगा। ठीक है, तो यस, रिमूविंग वाटर, गुड सृष्टि। ठीक है, ओके, देन टुडेज टॉपिक इज कंप्लीट and you will read this chapter again from the book, and if you have any query then you can ask me the next class. Okay. Hello. I think there is some network issue. That's why slide is not changing.
Okay, all of you, thank you. Okay, if you have any query, you can just, ma'am, this PDF. Yeah. No, Siddharth, I have not uploaded yet. I will upload all the notes on the ERP. Okay. I will send you in the group also. Then I will upload it.